Hi everyone, welcome to the Concept Cafe. In today's lecture, we are going to be discussing a few very important questions from the chapter Indices. So let's begin with the first question. It's here, right written. I would like you to do the questions with me. You can just pause the video and do this question. You can copy this question and do it, and then you can confirm the answer. Alright, now let's begin the question. Now 81 by 16. It can be written as, since in the denominator of the power there is a 4, so we will try to make it a power of 4. So what can we write it as? We can write it as 3 by 2 to the power whole to the power 4, because 3 to the power 4 is 81, 2 to the power 4 is 16. So 4 into minus 4 by 3 into 25 by 9. Alright, that could be written as, let's first reverse it so that the minus sign is gone. I would not like the minus sign really. Anyway, let's just keep the minus sign even if. So 5 by 3 square whole square into minus this divided by 5 by 2 to the power minus 5 or minus 3. So let's make it 2 by 5 to the power 3. So power cancel. 2 by 3 whole cube into 5 by 3 to the power of minus 3. So we can write it as 3 by 5 to the power 3 divided by 2 by 5 cube. Right? So we can write that as 2 cube by 3 cube into 3 cube by 5 cube into, now reciprocal it because there's a multiply sign, so we know that whenever there's a division you reciprocal by a multiplication sign. So 5 by 2 5 cube and 2 cube, 5 cube cancel, right? So now we are left with 2 cube by 3 cube into 3 cube by 2 cube. 2 cube cancel, 3 cube cancel. Answer will be 1. So this is one very important question from this chapter. Now let's move on to the next question that will be pretty important from this chapter. Okay, now we are coming to a few simplifications. Let's begin. So question 2 is 5 to the power n plus 2 minus 6 into n plus 1 by 13 into, this is not a decimal sign, okay, this is a multiplication, 5 into 5 to the 13 into 5 to the power 9, 5 to the power n, okay, and 2 into 5 to the power n plus 1. So how do we solve this? Okay, so at the top, whenever you see something like this, you have to take something as common. Okay, let's take 5 to the power n as common. Now within this, write 5 square minus 6 into 5. Okay, 5 to the power n, 5 to the power 2 will be 5 to the power n plus 2, right? And 6 into 5, which means 5 to the power n into 5, that is obviously 1, so 5 to the power n plus 1. So I've written this, and again here also let's take 5 to the power n as common. 13 minus 2 into 5. Alright, 5 to the power n, 5 to the power n cancels, and we are left with 5 square, that is 25, minus 6 into 5, 30, by 13 minus 2 into 5, 10. So it's going to be minus 5 by 3, and that's the answer. Okay, this is your answer. Alright, now this is also an important sum and it's a simple one. Now let's move on to the next sum. Question 3. What is the next sum? X to the power m by x to the power n whole to the power m plus 1 n, x to the power n by x to the power l whole to the power n plus l, x to the power L by x to the power m whole to the power L plus m.
Okay, so x to the power m by, we are following this law here. If we follow this law, x to the power m minus n, this into x to the power n minus l into n plus l into x to the power l minus m, l plus m. Alright, this is what is standing over here. After that, let's simplify this, and we know a square minus b square formula. So it will be m square minus n square into x n square minus l square into x l square minus m square. Now same base, different powers, sum up the powers. अगर हम पावर्स को सम अप कर लेते तो क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट जाता है, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाता है, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट जाता है, तो एक्स टू द पावर 0 रहता है, एंड तो आंसर क्या बनता है, 1 बनता है. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, चलिए इसके बाद वी विल डू this question. You can write down the question. This is a really important one. This time which one I am giving. Question number 4. Okay. If a equals to b to the power 2x, b equals to c to the power 2y, and c equals to a to the power 2z, prove xyz equals to 1 by 8. Okay, let's do it. Now first write what is given. What is given? A equals to b to the power 2x. This is equation. Alright, I'm sorry. B to the power 2x. This is equation 1. Okay. B equals to c to the power 2y. This is equation 2. And c equals to a to the power 2z. This is equation 3. Now कोई भी एक इक्वेशन को पकड़िए और लिख दीजिए. मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा और लिख दिया. सो b टू द पावर 2x. अब b की वैल्यू तो ये है क्या, इक्वेशन 1, राइट. अब b की वैल्यू इक्वेशन 2 से लीजिए. क्या है b की वैल्यू, c टू द पावर 2y, मतलब इसकी वैल्यू में 2x. ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 2. लिखना ज़रूरी है. तो क्या होगा, 4xy. अब c की वैल्यू निकालिए थर्ड इक्वेशन से. c की क्या वैल्यू है, 2 टू द पावर 2z, a टू द पावर 2z. और यहाँ पे a ये लिखते जाइए, ये लिखते जाइए. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये इंटू 4xy, ये कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 3. तो क्या हो रहा है, a टू द पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर टू द पावर 1 है. a 2z इंटू 4xy मतलब कि 8xyz. सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों इक्वल टू के इस पार ऊपर दो पार ही जो बेस है वो सेम है, तो क्या होगा, पावर सेम होंगी. तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स 8xyz इक्वल्स टू 1. तो 8 को वहाँ पे ले जाइए तो xyz को हम बता सकते हैं 1/8. सो क्या हो गया, हमारा जो प्रूफ करना था दैट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट. सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ इट. ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आफ्टर दैट लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल इट बी, चलिए देखते हैं. Okay, another important question. This is very important. Okay. Question 5, I believe. If a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z and b square equals to ac, prove that, क्या प्रूव करूँ मैं, y equals to 2xz by x plus z. Okay, let's solve it.
फिर से लिख डालिए, गिवन क्या है, a to the power x equals to b to the power y equals to c to the power z and b square equals to ac. Now इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन हमको दी गई होती है, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल्स हैं, सो वी विल टेक अ कांस्टेंट जो कि इसका इक्वल है, ठीक है. सो लेट k इक्वल टू k, एक कांस्टेंट हम ले रहे हैं जो कि इन सब से इक्वल है, ठीक है. तो a की वैल्यू क्या हो गई, k टू द पावर 1 बाई एक्स. क्यों? क्योंकि k कौन है, k है a टू द पावर x, तो उससे उसकी पावर में 1 बाई एक्स मतलब कि क्या होगा, a टू द पावर 1 a हुई होगा. b की वैल्यू क्या हो गई, k टू द पावर 1 बाई y, और c की वैल्यू क्या हो गई, k टू द पावर 1 बाई z. अब ये दिया गया है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. बस ये k के रिस्पेक्ट में जो ए बी सी की वैल्यूज़ है यहाँ पे डाल दीजिए. बी स्क्वायर मतलब कि b कौन है, यहाँ पे हमने लिखा है b कौन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. b कौन है, इसके में स्क्वायर. अब a की वैल्यू क्या लिखी है, k टू द पावर 1 बाई एक्स इंटू c, मतलब c की वैल्यू क्या लिखी है ये. चलिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर, सो k टू द पावर 2y. यहाँ पे देखिए दो सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो फिर से आप लिख दीजिए कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि दोनों ही इक्वल टू के इस पार ऊपर दोनों पार ही बेस सेम है, तो पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स भी सेम है क्योंकि बेस सेम है, राइट. तो क्या बता सकता है, 2 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड. अब प्रूफ क्या करने को दिया था, ये प्रूफ में y की वैल्यू को निकालना है. तो y की वैल्यू को अगर निकालना है तो y को यहाँ पे अकेला छोड़ दीजिए, y वाले टर्म को, और ये लीजिए एक्स जेड, ये मैंने एक एलसीएम लिया तो क्या हो गया, z प्लस एक्स, ठीक है. अब y की वैल्यू, y क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, y ये होगा, है ना, y ये होगा कि नहीं. इसके बाद 2xz, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2xz बाई z प्लस एक्स. यही हमको प्रूफ करना था, तो प्रूव हो गया, यही हमको प्रूफ करना था. चलिए नेक्स्ट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली वी विल डू वन, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप का है बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स राइट इट डाउन. इट्स क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. If 2 to the power x equals to 98 to the power y equals to 7 to the power z, prove z equals to 2xy by x minus 1. चलिए शुरू कर दीजिए सॉल्यूशन. अगेन लेट k इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने कहा एक कॉन्स्टेंट पकड़ लीजिए, लेट k इक्वल्स टू 2 to the power x इक्वल्स टू 98 to the power y इक्वल्स टू 7 to the power z. ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, ये ओके. 98 की वैल्यू क्या हो गई, ये. 7 की वैल्यू क्या हो गई, ये. अब ये हम जानते हैं कि 2 इंटू 7 इंटू 2, सॉरी नॉट दिस, 7 इंटू 7 इंटू 2 क्या होता है, 7 इंटू 7 49 और इंटू 2 इज इक्वल टू 98. तो ये हम जानते हैं, मतलब कि ये हमको पता है कि 7 स्क्वायर इंटू 2 98 होगा. ठीक है, तो अभी यही करना है, इन तीनों के बीच एक रिलेशन निकालना है. रिलेशन हमने निकाल लिया है, बस जगहों पे भर दीजिए. 7 का वैल्यू क्या निकाला है हमने, ये स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू ये, सो k टू द पावर 2 बाई z इंटू k टू द पावर 1 बाई x इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाई y. सेम पावर्स है, सॉरी सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. चलिए फिर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 2 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई वाई. अब देखिए प्रूफिंग में हमने निकालना है z की वैल्यू, तो z वाला टर्म यहाँ पे छोड़ देते हैं 2 बाई जेड, और x वाले टर्म को वहाँ पे ले जाते हैं. जो भी टर्म निकालना है प्रूफिंग में उसको अकेले छोड़ देंगे, ठीक है. बाकी अगर कुछ भी है तो उसे वहाँ पे और एक साइड में ले जाएंगे. सो 2 बाई जेड, यहाँ पे एलसीएम किया मैंने, x माइनस वाई
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू 2xy। चलिए, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2xy बाई x माइनस वाई। यहाँ पे नीचे चला गया ये वाला, तो चलिए ये भी प्रूव हो गया, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक हम कितने सारे सम्स कर चुके, हम 6 सम्स कर चुके, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्या है हमारा नेक्स्ट सम, चलिए देखते हैं। सम नंबर 7। सम नंबर 7। चलिए ये सम है, गिवन 1176 इक्वल्स टू 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 7 टू द पावर r। ये हमको दिया गया है, हमको क्या करना है, फाइंड p q r, p q r हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसमें पहले क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग, 7 टू द पावर समथिंग। पहले क्या कीजिएगा, 17, ये इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। प्राइम फैक्टराइज करते हुए हम, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइज किया जा रहा है। अब अगर आप प्राइम फैक्टराइज इसे करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 1176 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, मतलब कि 2 क्यूब इंटू सिंगल 3, मतलब कि 3 की पावर में 1, 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे p क्या है, 3 है, q क्या है, 1 है, और r क्या है, 2 है। सिंपली यही प्राइम फैक्टराइज करके आप देखिएगा, यही मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, अच्छा चलिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 4 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1 बाई 32। ओके, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो 2 स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या है, अगर 1 ये है तो ये हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 5 मतलब 2 टू द पावर 1 बाई 2 टू द पावर 5 मतलब 2 टू द पावर -5। इसका मतलब 4x इक्वल्स टू -5, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो x की क्या वैल्यू हो गई, -5/4, ठीक है, यही है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास और एक सम है। क्या है वो सम, देखते हैं। क्वेश्चन 9, हाँ 9 होगा ये वाला, क्वेश्चन 9। ओके, सो इफ 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 100, फाइंड 3 टू द पावर 1 प्लस x, ठीक है। इस इक्वेशन को उठाइए, जो दिया गया है, जो इक्वेशन 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 100, ये इक्वेशन मैंने उठाया, ठीक है। चलिए, अब इसे नेक्स्ट कैसे करना है ये आप देखिएगा। 5, ये ऐसा ही छोड़िए आप, इसे 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे, 5 स्क्वायर लिख तो सकते हैं ना 25 को, अच्छा जी हाँ लिख सकते हैं, प्लस 100 को भी ऐसे छोड़िए, 5 टू द पावर 2x माइनस 1, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए पावर के साथ, 2x माइनस 2। अब देखिए सारे 5 टर्म्स को एक जगह पे ले लीजिए, 2x माइनस 1 यहाँ पे -5x है ना, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब कॉमन लीजिएगा। कॉमन कैसे, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ। यू हैव टू टेक 5 टू द पावर 2x माइनस 2 कॉमन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5, क्योंकि 5 टू द पावर 2x माइनस 2, यहाँ पे 5 1 है ना, तो प्लस 1 क्या होगा, ये 5 टू द पावर 2x माइनस 1, मतलब कि क्या, कौन सा वाला, ये वाला है ना, -1, राइट, इक्वल्स टू 100।
तो ये हमने कॉमन ले लिया है, तो 5 टू द पावर 2x माइनस 2, ये क्या होगा 4 होगा, 5 माइनस 1, तो 100/4 क्या होता है वो 25 होता है। तो 5 टू द पावर 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 25 जो कि है 5 स्क्वायर। तो क्या आप बता सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2, 2x इक्वल्स टू 4 एंड सो x इक्वल्स टू 4/2 दैट इज़ 2। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। ठीक है, इजी सम था। ओके चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, अच्छा डिटरमाइन क्या क्वेश्चन बताया गया है। अच्छा यहाँ पे और एक पार्ट था क्वेश्चन का कि फाइंड 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स हमें मिल गया, तो 3 टू द पावर 1 प्लस ये क्या होगा 3q, मतलब कि 27। हाँ यही होगा आंसर, ये नहीं होगा, ये होगा आंसर। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन 8x टू द पावर x इफ 9 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9 टू द पावर x। ठीक है, ये इक्वेशन उठा लीजिए जो कि दिया गया है, इक्वेशन को उठा लीजिए। अब जो 9 टू द पावर x वाला टर्म है इसे इस साइड पे लेके आइए, सारे सिमिलर लुकिंग टर्म्स एक साइड में करना है। नाउ लेट्स टेक 9 टू द पावर x इज कॉमन, 9 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 240। अच्छा चलिए 9 स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, माइनस 1 240, यहाँ पे 80 हो जाएगा ना ये, तो ये जो 80 है वो यहाँ पे इस साइड पे नीचे चले जाएगा, तो क्या होगा ये 3 होगा। अब 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, और 3 टू द पावर 1 है तो ये हम लिख सकते हैं। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2 या 0.5, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द ग्रैंड एंड ऑफ आवर indices important questions. We did 10 most important questions from this chapter. ये सारे के सारे जो questions है they are really important. You can pause each and every question and do it separately. Take a glance of each one. बहुत ही important questions है. Okay, so meet you in the next lecture. Keep doing math, and the next lecture will be on something different, something that's not very expected. Okay, stay tuned, and you can comment down any doubts. I will reply quite fast.